topic for today is advantages of Bohr's model. So Bohr's model के फायदे. So we'll discuss these advantages one by one. Let us take the first advantage, that is Bohr's model could explain the stability of the atom. Rutherford's model का एक drawback था, that was unable to explain the stability of the atom. But Bohr's model could explain the stability of the atom. According to Bohr's theory, as long as the electron stays in a particular orbit or particular energy level, it does not lose energy. यानी जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है, स्टे करता है अराउंड द न्यूक्लियस, it does not lose energy, energy lose नहीं करता. So therefore, the question of losing energy continuously and falling of electron on the nucleus does not arise. यानी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लूज करना कंटिन्यूसली और न्यूक्लियस पे फॉल होना, यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज नहीं होता. सो देयरफॉर एटम डज नॉट कोलैप्स, इट इज स्टेबल. The second advantage of Bohr's model is that it could explain the line spectrum of hydrogen and hydrogen-like atoms like helium, helium 1 plus or lithium 2 plus. That means single electron systems. So, according to Bohr's theory, Bohr's model, जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करता है, इट डज नॉट लूज एनर्जी, ये एनर्जी लूज नहीं करता. अब जब हम एटम को सब्जेक्ट करते हैं, वी सब्जेक्ट एटम टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और हाई टेम्परेचर, द इलेक्ट्रॉन इन एटम दैट विल जंप, वो जंप करता है. So electron जो atom में they will jump to the higher levels from the lower levels. So that means they will jump from the ground state to the higher energy state, that is excited state. यानी ground state हो गया normal state, low energy state, और excited state हो गया high energy state. So they will jump from the lower energy state, that means normal state, ground state, to the higher energy status, the higher energy levels, higher energy status, that means excited state. बट द लाइफ टाइम, जो इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम होता है एक्साइटेड स्टेट में, दैट इज वेरी शॉर्ट. सो वो क्या करते हैं, दे इमीडिएटली रिटर्न बैक टू द लोअर एनर्जी स्टेटस और टू द फर्स्ट एनर्जी स्टेट. इट मे टेक इलेक्ट्रॉन 1 or 2 जंप्स, 1 या 2 या मनी जंप्स में ये आ सकता है फ्रॉम हायर स्टेटस टू द लोअर स्टेटस और टू द ग्राउंड स्टेट. उससे क्या होता है, ड्यूरिंग ईच जंप, हर जंप के दौरान एनर्जी इज इमिटेड, एनर्जी इमिट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट ऑफ डेफिनेट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी. यानी एनर्जी यहां पर इमिट होती है, हर जंप के दौरान एनर्जी इमिट होती है ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, ऑफ एनर्जी इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ. द फ्रीक्वेंसी of the emitted radiation or emitted light depends upon the energy difference between the two energy levels concerned. For example, अगर यहाँ पर ये E1 एनर्जी था, इसका है E2 एनर्जी, आप मानिए ये लोअर लेवल है, ये हायर लेवल है. अब यहाँ से जंप ये करेगा बैक, ऐसे करेगा जंप फ्रॉम E2 टू E1. यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस इनके दरमियान है E2 माइनस E1, ये आएगा बराबर h nu, where h is Planck's constant, is the frequency of radiation. So frequency of radiation is equal to the difference of energies of the two energy levels concerned. जहाँ से इलेक्ट्रॉन ने फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल जंप किया है, उन्हीं 2 एनर्जी लेवल्स की डिफरेंस जो आती है, दैट इज गिव्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इमिटेड. सो वी कैन राइट हियर न्यू हो गया यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू E2 माइनस E1 divided by h, where h is Planck's constant. So we can write also this, ये हो गया frequency of this emitted radiation. We can also write this in terms of wavelength. So we know that nu is equal to c divided by lambda
फ्रॉम द रिलेशन C इज इक्वल टू न्यू लेमडा, ये आपने ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। सो न्यू इज इक्वल टू C बाई लेमडा। सो अब हम ऐसे कर सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू C बाई लेमडा। सो इसको हम, सो आई राइट लाइक दिस, इज इक्वल टू E2 माइनस E1 डिवाइड बाई H। सो यहाँ से इससे हम निकाल सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू HC डिवाइड बाई E2 माइनस E1, और लेमडा इज इक्वल टू HC डिवाइड बाई del E, change energy. So this is the wavelength of the emitted radiation or emitted energy. H हो गया Planck's constant, what is C? C is the velocity of light. Del E is change in energy, that means energy difference between the two levels concerned. So अब क्या मतलब, जो भी यहाँ पर emit radiation होती है, आप यहाँ पर emit radiation होती है या light emit होती है of a particular frequency or of a particular wavelength. अब ये स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, दिस इमिटेड रेडिएशन अपीयर्स एज ए लाइन, वहां पर यही रेडिएशन अपीयर होती है एज लाइन। जो यहां पर इमिट होती है रेडिएशन ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, दिस अपीयर्स एज ए लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यहां पर ये अपीयर करते हैं एज लाइन, हमें फिर यहां पर एक लाइन दिखती है यहां पर। सो इस तरह हम यहां पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर सकते हैं on the by applying Bohr's theory or Bohr's model. So the third advantage of Bohr's model is that one can calculate energy of the electron in hydrogen atom and hydrogen-like atoms by using Bohr's formula En, यानी for nth level. This is energy for nth level of the electron. ये बराबर है माइनस 2 पाई स्क्वायर ME4 डिवाइड बाई n स्क्वायर H स्क्वायर। इससे हम एनर्जी निकाल सकते हैं फॉर हाइड्रोजन, ये हो गया फॉर हाइड्रोजन एटम, एंड फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स वी कैन कैलकुलेट En is equal to minus 2 pi square ME4 डिवाइड बाई n स्क्वायर H स्क्वायर। यहाँ पर हम m z स्क्वायर E4, यहाँ पर सिर्फ हम इंट्रोड्यूस करते हैं z। सो z यहाँ पर है एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर है। ये हो गया फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स लाइक लिथियम प्लस, लिथियम 2 प्लस और हीलियम प्लस, ये हो गया हाइड्रोजन लाइक एटम्स। इनके लिए हम कर सकते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट। So this was the third. The fourth advantage and important advantage is that one can deduce a Rydberg formula with the help of Bohr's model. And that means Bohr's model helps us to deduce a Rydberg formula. Rydberg formula हम deduce करते हैं. For example, we can write energy for the nth level, हम लिख सकते हैं। Energy हमने लिखा है AB for nth level, ये हो गया energy for nth level of the electron, ये हमने लिख दिया है। या nth shell में इतनी एनर्जी होती है, En is equal to this 2 pi square ME4 by n square H square। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। So En is equal to minus RH 1 by, यानी हम how to deduce, actually हमें deduce करना Rydberg's formula। So this is where RH यहाँ पर है, ये होता है, ये बराबर है 2 पाई स्क्वायर ME4 डिवाइडेड बाई H स्क्वायर, ये इसके बराबर है। वायर R जो है यहाँ पर, दिस इज, ये RH जो है, दिस इज राइडबर्ग कांस्टेंट, ये राइडबर्ग कांस्टेंट है दिस RH इसके बराबर होता है। अगर हम इसको करेंगे, इनका वैल्यू हम सपोज करेंगे, पाई का वैल्यू, m का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 9.11 into 10 minus 31 kg, या E का करेंगे 1.60 into 10 minus 19। अब H स्क्वायर का वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.625 into 10 minus 34 जूल सेकंड। इनमें ये वैल्यू सपोज करेंगे, we will get 21.8 into 10 minus 19 joules आएगा इसका वैल्यू पर एटम, या आएगा इसका वैल्यू RH का वैल्यू, राइडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, हम मानते हैं पर इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम फाइनल लेवल, आप मानिए
यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर, दिस इज फाइनल लेवल यानी हैविंग एनर्जी E2 एंड दिस इज इनिशियल लेवल दैट इज E1 यानी फाइनल से इनिशियल में ये जंप करता है इलेक्ट्रॉन करता है जंप. सो वी कैन राइट एनर्जी डिफरेंस हम लिख सकते हैं डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1. हम ऐसे लिख सकते हैं एनर्जी डिफरेंस. सो इन टर्म्स ऑफ दिस हम ऐसे लिख सकते हैं ये E2 है यहाँ पर, दैट इज हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस RH E2 दैट इज 1 बाय N2 स्क्वायर 1 बाय N2 स्क्वायर माइनस, ऐसे मैं लिखूंगा माइनस, इसका ये माइनस है, फिर इसका अपना माइनस है RH 1 बाय N1 स्क्वायर यानी E2 का ये एनर्जी E1 का ये एनर्जी. ऐसे हम लिख दिया ये. इसको हम थोड़ा करेंगे सिंपलीफाई इसको. सो विल राइट लाइक दिस, इट विल बिकम RH निकालेंगे यहाँ पर कॉमन. सो विल राइट RH हो गया 1 बाय माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर माइनस माइनस ये बनेगा प्लस 1 बाय N1 स्क्वायर. सो ये बनेगा RH 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर. सो दिस इज एनर्जी डिफरेंस. ये डेल E निकल गया ये. सो एनर्जी डिफरेंस हमने निकाल दिया ये RH 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर. अब अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे दैट इज फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू, अभी हमने निकाला था डेल E यानी E2 माइनस E1 इज इक्वल टू डेल E. वो हम निकाला डेल E डिवाइड बाई H, ये होना H न्यू के बराबर. यहां से निकलेगा न्यू का वैल्यू डेल E बाई H. सो न्यू का वैल्यू हम लिखेंगे डेल E डिवाइडेड बाई H. अभी हमने निकाला था वो इससे पहले वाले इसमें एडवांटेज में. सो दिस इज डेल E बाई H. सो H इज प्लैंक्स कांस्टेंट. सो डेल E हमने अभी निकाला, डेल E अभी हमने निकाला दैट इज RH into 1 by N1 square minus 1 by N1 square minus 1 by N2 square. अब ये हो गया डिवाइड बाई यहाँ पर करेंगे H. अब RH का वैल्यू भी हमने निकाल दिया, दैट इज 21.8 into 10 raised to minus 19 जूल डिवाइड बाई प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया 6.625 into 10 raised to minus 34 जूल सेकंड इनटू ये बनेगा 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर. थोड़ा करिए सिंप्लीफाई. इसको हम लिखेंगे, इसका वैल्यू आएगा, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट 3.29 into 10 raised to 15 1 बाय N1 स्क्वायर. ये हो गया फ्रीक्वेंसी निकलेगा इसके बराबर 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर. निकल गया ये हो गया इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में निकाला. फ्रीक्वेंसी हमने निकाल दिया यानी राइडबर्ग्स फार्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. अब निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर. एक्चुअली राइडबर्ग्स फार्मूला है एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर. वो होता है न्यू बार. वेव नंबर का न्यू बार दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय लैम्डा होता है. 1 डिवाइड बाय लैम्डा. यहां पर हम करेंगे 1 डिवाइड बाय लैम्डा योगा वो निकलेगा. अगर हम ये रिलेशन निकालेंगे C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, यहां से निकलेगा ये आई विल गेट न्यू बाय C. व्हेन न्यू इज फ्रीक्वेंसी, C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट. सो ये आएगा, आप देखो यहाँ पर 1 बाय लैम्डा ये हो गया न्यू तो भी निकाला हमने 3.29 into 10 raised to power 15 into 1 by N1 square minus 1 by N2 square. डिवाइड करिए इसको C से, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड. इसे करेंगे इसको डिवाइड, अल्टीमेटली विल गेट, ये पर सेकंड है ऐसे लिखेंगे पर सेकंड. सो विल गेट, इसका सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट 1.0977
sorry 677 into 10 raised to power 7 into 1 by n1 square minus 1 by n2 square निकलेगा ये. So we'll get this is the value of RH. ये RH का वैल्यू है. So this is wave number. ये हो गया wave number. ये हो गया राइडबर्ग्स फार्मूला in terms of wave number. अब ये हो गया पर मीटर. अब इसको हम करेंगे 1.09677 into 10 raised to power 7 पर मीटर है. ये पर मीटर. ये राइडबर्ग ये हो गया RH का वैल्यू. RH का वैल्यू राइडबर्ग कांस्टेंट है RH का वैल्यू. सो विल गेट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स. सो ये हो गया राइडबर्ग कांस्टेंट. सो दिस इज a Rydberg formula in terms of wave number. So this is a Rydberg constant. So Bohr's model help us to deduce a Rydberg formula जिससे हम स्पेक्ट्रम में किसी भी लाइन की वेव लेंथ निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, या उसका हम फिर वेव नंबर निकाल सकते हैं. So this was about advantages of Bohr's model. Now we have some limitations of Bohr's model. So we'll discuss that in the next topic. Thanks.